Hello students, I hope you all are fit and fine at your homes, and congratulations to all the students of 6th class for your promotion in 7th. I am Rajvinder Kaur and going to teach you computer science. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So okay, class 7th, we are going to read our first chapter, that is hardware components of a computer. We will read about external hardware components, internal hardware components, difference between internal and external hardware components. So हार्डवेयर के बारे में आपको सबको पता है कि क्या होता है. कंप्यूटर पार्ट्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड आर नोन एज हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर. So the hardware components of a computer can be external or internal. The external hardware components are attached to a computer externally. The internal hardware components are inside a computer. So internal कौन से होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर प्लेस किए जाते हैं, जैसे आपकी ड्राइव्स हैं, और एक्सटर्नल जो बाहर से अटैच किए जाते हैं जैसे कीबोर्ड और माउस. So first we will read about external hardware components. Some external hardware components of a computer are monitor, keyboard, mouse, printer, scanner, USB flash drive, modem and ports. These are the examples that are your external hardware components: monitor, keyboard, mouse, printer, scanner and so on. So first is your monitor. You are well versed with monitor, that what is monitor? It shows the output on the screen. So a monitor displays the result of a process. It is also called a visual display unit. A display can be in the form of text, images and videos. The information displayed on a monitor is known as soft copy. Computer monitors are available in different size and types. So जो कंप्यूटर मॉनिटर होता है आपका, वो आपके जो आपने इनपुट दी है अपने कंप्यूटर को, उसका रिजल्ट आपको बताता है ऑन योर स्क्रीन. इट कैन बी टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस, जो आप स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, और वो स्क्रीन क्या होती है आपकी? मॉनिटर होती है. सो कंप्यूटर जो मॉनिटर है आपका वो डिफरेंट साइजेस और टाइप्स में आता है. देन देयर आर कीबोर्ड. सभी को पता है कीबोर्ड के बारे में. A keyboard allow you to input letters, numbers and other symbols into a computer. It has different keys that can be used to perform different functions. So आपके कीबोर्ड के ऊपर डिफरेंट कीज़ होती हैं जो आपको फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए अलाउ करती हैं. You can also write your symbols with the keyboard. So students, कीबोर्ड में 104 to 106 तक कीज़ होती हैं, क्योंकि ये वेरीज करता है कि डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज कीबोर्ड को मैनेज करती हैं या बनाती हैं, डेवलप करती हैं, सो मैन्युफैक्चर करती हैं, तो उसमें डिफरेंट नंबर्स ऑफ कीज़ होते हैं. 104 इज़ द मिनिमम एंड 106 इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज़. देन थर्ड आपका एक्सटर्नल हार्डवेयर है, वो कौन है? माउस. A mouse controls the movement of a cursor on the screen. It is also used to select various objects on the screen. A mouse has a left button and a right button. You can give instruction to a computer by clicking these two buttons. And there is a scroll wheel between these two buttons. सो माउस क्या करता है? कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है. हमने सभी ने देखा है जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उस पर एक एरो लाइक शेप होती है जो क्या होता है? आपका कर्सर होता है, और जैसे जैसे आप माउस की मूवमेंट करते हो वैसे वैसे कर्सर की मूवमेंट होती है. सो माउस में क्या होता है? 2 बटन्स होते हैं जो आपके जो आइटम्स हैं, फाइल्स हैं, उनको सिलेक्ट करने के लिए, उनको ओपन करने के लिए यूज़ की जाती हैं, दीज 2 बटन्स. एंड देन ये स्क्रॉल व्हील के, अगर आपका पेज काफ़ी लंबा है तो आप स्क्रॉलिंग करके उस पर देख सकते हो पूरे को पूरे पेज को, या अगर PDF है कितने सारे पेजेस का है, देन यू कैन यूज़ योर स्क्रॉल व्हील. Then there are printers. A printer is used to print text or images on a sheet of paper.
as the input given by a printer is on a sheet of paper, therefore this output is known as hard copy. Printers are of mainly two types, impact and non impact. So printer क्या होता है, जो आपकी टेक्स्ट है, इमेज है, उसको एक शीट ऑफ पेपर पे प्रिंट कर देता है. जैसे ये टेक्स्ट है, दीज आर प्रिंटेड ऑन द पेज ऑन अ शीट. सो ये क्या है, आपके प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है. और इसको क्या बोला जाता है, हार्ड कॉपी, बिकॉज वी कैन टच इट. सो दिस इज आर हार्ड कॉपी. सो टू टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. Okay, so first are impact printers. These printers use a print head to strike an ink ribbon to give an impression on a sheet of paper. A dot matrix printer is an example of an impact printer. Dot matrix printer uses dots to form an image. So impact printers में क्या होता है, एक प्रिंट हेड यूज होता है जो एक इंक रिबन पे स्ट्राइक करता है, टकराता है, तो जाके क्या बनता है, हमारी शीट पे इम्प्रेशन पड़ता है, लाइक टेक्स्ट उसमें फॉर्म हो जाते हैं. डॉट मैट्रिक्स क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर की एक एग्जांपल है. इसमें डॉट्स यूज होते हैं टू फॉर्म एन इमेज. देन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, दीज प्रिंटर्स डू नॉट यूज अ प्रिंट हेड टू स्ट्राइक एन इंक रिबन टू गिव एन इम्प्रेशन ऑन द शीट ऑफ पेपर. इसमें प्रिंट हेड नहीं यूज होता है. सो दे मेक लेस साउंड वाइल वर्किंग देन द इम्पैक्ट प्रिंटर. इम्पैक्ट प्रिंटर जब काम करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो साउंड प्रोड्यूस इतना नहीं करती है. Inkjet printers are and laser printers are example of non-impact printer. जो inkjet printer है, laser printer है, जो नीटलेस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, आपकी लेज़र यूज़ करती है वो प्रिंट करने के लिए. So these are the example of non-impact printers. Then we have scanner. A scanner helps to scan an image or printed text and convert it into digital images. It is used to input graphic information into the computer. There are different types of scanners. So scanner क्या होते हैं कि हम उस पर कोई इमेज या हमारा कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, हम उसको स्कैन करते हैं, उस पर रख के उसको स्कैन करते हैं, तो वो क्या करता है, उसको डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देता है. डिजिटल इमेज जैसे कि हमारे फ़ोन्स या हमारे पीसीज में इमेजेस पड़ी होती हैं. ओके, सो वो आपके एक तरह से आपके डॉक्यूमेंट की एक इमेज क्लिक करता है, वेरी क्लियर इमेज, और उसको आपको आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे ऊपर दिखाता है, आपको शो करता है. तो उस पर ग्राफिक इन्फॉर्मेशन भी इनपुट करने के लिए स्कैनर्स यूज़ होते हैं. सो टू टाइप्स हैं स्कैनर्स के, फ्लैट बेड स्कैनर एंड बारकोड स्कैनर. फ्लैट बेड स्कैनर्स क्या होते हैं, अ फ्लैट बेड स्कैनर हैज़ अ फ्लैट सरफेस ऑन विच द डॉक्यूमेंट और इमेज टू बी स्कैन्ड इज प्लेस्ड. फ्लैट बेड दैट मीन्स फ्लैट लाइक दिस. सो दिस स्कैनर इज़ अ फ्लैट. और अगर हमको कोई इस पर पेपर या रखना है हमारी शीट, तो हम क्या करेंगे, उसको फ्लैट सरफेस पे रखेंगे और उसको बंद कर देंगे, तो वो क्या है, हमारी जो शीट है, जो डॉक्यूमेंट है, उसकी इमेज क्लिक करके हमें मॉनिटर पे दिखा देगा. सो बारकोड स्कैनर क्या होते हैं, ऐसे दिखते हैं और जो बारकोड को स्कैन करते हैं. बारकोड स्कैनर, बारकोड इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्टिकल लाइंस और बार्स. These bars contain information about the product on which it is printed. A barcode scanner scans the barcode and sends the information stored in it to the computer. Then computer displays details of product such as name, price and so on. So students, you can see the barcode anywhere, any product you purchase. Okay. सो स्टूडेंट्स, बारकोड जैसे कि ये आपकी बुक है कंप्यूटर साइंस की, इस पर भी एक बारकोड दिया गया है. ओके, सो अगर आप आसपास भी देखेंगे तो कोई आप चिप्स का पैकेट भी परचेज करते हो तो उस पर भी ये बारकोड होता है. तो इस बारकोड को रीड करने के लिए ये बारकोड स्कैनर है वो यूज़ किया जाता है. सो ये उन बार्स को रीड करता है, उन कोड को रीड करता है, उसको डीकोड करता है, और उस इनमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट के बारे में. सो उसमें क्या कौन सी होती है कि प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसका प्राइस क्या है, कि वो कहाँ का मैन्युफैक्चर है, कहाँ से बना है, उसकी MFG डेट और एक्सपायरी डेट क्या है. सो वो जो डिटेल्स हैं देन वो कंप्यूटर आपको शो कर देगा. ये वैसे तो स्टोर्स में यूज़ किया जाता है नॉर्मली. ओके, देन वी हैव आवर USB फ्लैश ड्राइव, जिसको हम पेन ड्राइव भी बोल देते हैं. So USB flash drive, also called pen drive, is form of reusable storage device. USB flash drives are available with different storage capacities ranging from 4 GB to 512 GB. कहाँ से कहाँ तक कैपेसिटी होती है इसकी, 4 GB से लेके 512 GB तक. ओके, सो वी ऑल आर
वेल वर्स्ड विद द पेन ड्राइव्स, हम सभी ने यूज़ की होती हैं. सो दिस इज एन एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस. देन वी हैव आवर मॉडम. So modem, the word modem stands for modulator, demodulator. A modem is a device that converts digital information into analog and vice versa. This is needed for data transmission. You can connect a modem to a computer with the help of cables. So modem इतना छोटा सा बॉक्स होता है जो हमारी इंटरनेट फैसिलिटी को अवेलेबल कराता है हमारे पीसी को. सो मॉडम की फुल फॉर्म क्या है? मॉडुलेटर, डीमॉडुलेटर. और ये हमारा कन्वर्ट करता है डिजिटल इन्फॉर्मेशन इनटू एनालॉग एंड वाइस वर्सा. दैट मीन्स कि एनालॉग टू डिजिटल. हमारी जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन होती है उसको वेव्स में ऐसे शो किया जाता है और एनालॉग है उसको वेव्स में. सो मॉडम क्या करता है? इस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करता है. हम अपने कंप्यूटर से विद द हेल्प ऑफ केबल्स मॉडम कनेक्ट कर सकते हैं. और यू कैन कनेक्ट अ वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस कार्ड टू द मदरबोर्ड एंड देन कनेक्ट इट वायरलेसली टू अ वाईफाई मॉडम. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है NIC, उसको आप मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर सकते हो और देन आप अपने वाईफाई के साथ उसको वायरलेसली यानी कि विदाउट एनी केबल्स आप उसको कनेक्ट कर सकते हो. अ वाईफाई मॉडम इज कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड. जो ये है वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है. इट कैन बी प्लेस्ड आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली. इसको इंटरनली यानी कि आपके CPU के अंदर भी प्लेस किया जा सकता है और आप इसको बाहर भी रख सकते हो. वाईफाई इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू प्रोवाइड नेटवर्क कनेक्टिविटी. सो वाईफाई के बारे में हम सभी को पता है कि एक टेक्नोलॉजी है जो रेडियो वेव्स यूज़ करती है और हमको इंटरनेट प्रोवाइड करती है. लाइक एक हाउस में वाईफाई लगा हुआ है तो हम रूम में बैठ के भी अपने किसी भी रूम में बैठ के इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं. देन हमारा एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस क्या है? पोर्ट्स. अब कंप्यूटर पोर्ट इज़ अ कनेक्शन पॉइंट बिटवीन अ कंप्यूटर एंड एन एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइस. जो कंप्यूटर पोर्ट्स हैं वो क्या होती हैं? वो एक कनेक्शन पॉइंट होती है जहाँ से इंटरनल और एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस क्या है कनेक्ट हुए होते हैं. जैसे इस लैपटॉप में ये जो पोर्ट्स दिखाई दे रही हैं जहाँ पे आप अपना केबल को प्लग इन करते हैं उसको बोला जाता है पोर्ट्स. ओके. सो पोर्ट्स टू टाइप्स की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल पोर्ट्स कनेक्ट डिवाइसेस सच एज हार्ड ड्राइव, CD, DVD ड्राइव्स एंड सो ऑन. जो इंटरनल पोर्ट्स होती हैं वो हमारे CPU के अंदर होती हैं, वो हार्ड ड्राइव CD ड्राइव्स को कनेक्ट करती हैं. एक्सटर्नल पोर्ट्स कनेक्ट डिवाइसेस सच एज मॉडम, प्रिंटर, पेन ड्राइव एंड सो ऑन. जो एक्सटर्नल पोर्ट्स होती हैं जो बाहर होती हैं CPU के, जहाँ पे हम अपनी पेन ड्राइव लगाते हैं, हमारी डेटा केबल लगाते हैं. सो दीज आर एक्सटर्नल. और इंटरनल जो होती हैं वो हार्ड ड्राइव और CD ड्राइव्स को कनेक्ट करती हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट्स. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल रीड इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स. और आपको क्या करना है? अभी आपको अपनी बुक के ऊपर पेज नंबर 10 पे जो ट्रू फॉल्स दिए गए हैं लेट्स रिव्यू वाले, आपको वो करनी है, अपनी बुक पे ही करनी है अपनी. ओके, डू इट ऑन योर बुक ओनली. सो फर्स्ट वन इज द इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर इनसाइड अ कंप्यूटर. दैट इज ट्रू. इंटरनल है तो वो कंप्यूटर के अंदर होंगे. द वर्ड मॉडम स्टैंड फॉर मॉडुलेटर, डीमॉडुलेटर. दिस इज ऑल्सो ट्रू. फ्लैटबेड स्कैनर हैज़ अ ग्रुप ऑफ वर्टिकल लाइंस और बार्स. दिस इज फॉल्स, क्योंकि फ्लैटबेड स्कैनर पे बार्स नहीं होती हैं. जो बार्स हैं वो बार कोड पे होती हैं. ओके. ऑल द इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेज आर सॉफ्टवेयर. दिस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि सारे जो डिवाइसेज हैं वो सॉफ्टवेयर नहीं होते, हार्डवेयर भी होते हैं. जैसे आउटपुट पे मॉनिटर है, हार्डवेयर है. द कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट. इट इज ट्रू. इंटरनल पोर्ट्स कनेक्ट डिवाइसेज सच एज हार्ड ड्राइव, CD ड्राइव्स. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर टू डू डिफरेंट टास्क. दैट इज ऑल्सो ट्रू. जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर को बताते हैं कि कौन कौन से काम है उसने करने हैं. इंकजेट प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर. दिस इज फॉल्स. इंकजेट प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. अ माउस हैज अ लेफ्ट एंड राइट बटन. दिस इज ट्रू. वाईफाई इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेज रेडियो वेव्स. दिस इज ऑल्सो ट्रू. Okay students, you have to do it on your book. Okay students, we will meet in next lecture. Bye.